So student, now you understand how much the reactant also effect on the product. Same way, suppose if we will take the toluene with the FeCl3, then here the product is also different. Here the ortho and para mixture of chlorotoluene will get. After studying this conversion reactions of electrophilic substitution of chlorobenzene, students, some more conversions trick also I am going to explain you. But before going to that conversion, I'll just give the hint for some important question which is asked for the Federal-Kraft acylation question. As you have studied in the Federal-Kraft acylation, as I said, this is only the major product. We have the 4-chloroacetophenone is the major product. Here there is a less chances or very rare chances to get the minor product. So the question is mostly asked here, why only we get the major product in very more in proportion. This is very rare aware product. Because here you can see this group is a bulkier group. It is a bulkier group and ortho position पे large group होने की वजह से यहाँ पर steric effect is occur. So this is the reason why here the acylation of Federal-Kraft acylation reaction, mostly the ortho product is very less in proportion, or mostly we can say that not at all available also, not at all we get also. So this is the question mostly asked in the board exam. This is of the 2 marks question. Same way, if we have taken the 2 pair of different reactant, one more reactant pair is also remaining, and that is the alcoholic KOH and aqueous KOH. It is also very important conversion. Sometime it is asked that convert this chloride into the alkene. So what is to be done? Or sometimes it is asked to convert into the alcohol. So the product for KOH, here we'll take alcoholic KOH and another for we'll take KOH, that is a aqueous KOH. We'll take with the same example, or we'll take here butyl chloride. So CH3, CH2, 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 Cl. Here we have a butyl chloride, and first of all we'll just go with the reaction of alcoholic KOH. Alcoholic KOH. So now here what happens, students, when you are using the alcoholic KOH, it is in the form of K plus and OH minus. So as we have seen for the previous reaction for KCN and AgCN, we have studied that for KCN it is in the form of K plus and Cn minus. So KCl will be the byproduct. Here also the same way KCl will be the byproduct, and here you are with the product of beta elimination reaction. Here you get the beta elimination reaction. So what happen over here, beta elimination reaction के ऊपर से यहाँ से जो है वो आपका जो X जहाँ जुड़ा हुआ है वो X के पास से उसके बाजू वाला जो कार्बन है, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर बीटा कार्बन. सो बीटा कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन और यहाँ OH जो है वो रिमूव होगा और यहाँ आपको मिलेगा -H2O.
So here the product is CH3, CH2, CH double bond CH2. You'll understand that whenever the alcoholic KOH we have used, the product is alkene. The product is alkene. Now we understand about the aqueous KOH. Whenever we are using the aqueous KOH, we'll just take with the same reactant, but the reagent we are taking, that is aqueous KOH. So now you just see what will happen over here. When the reaction occurs with the NaOH also, here in place of KOH, NaOH will also do the same work whatever the KOH do. So here the reactant KOH and Cl minus. So product में आपको minus KCl and OH will be replace the Cl. So here CH3, CH2, CH2, CH2OH. So here the alcohol is the product. Alcohol is the product. So student, you can see that how much the different reactant plays an important role to giving the reactions also. इसको याद रखने की एक shortcut की भी बता देती हूँ मैं आपको. Whenever the aqueous gives the alcohol. Aqueous अल्कोहल मतलब अपोजिट याद रखना है. अल्कोहलिक KOH अल्कीन देता है, अल्कोहलिक KOH अल्कोहल नहीं देता है. सिंपल से याद रखोगे. दिस इज द सिंपल ट्रिक टू जस्ट रिमेंबर. इफ द अल्कोहलिक KOH, then you have to write the product alkene, but when the aqueous KOH, then you have to give the product, it is a alcohol. So the reverse में याद रखोगे, so it will be very easy. तो स्टूडेंट, ये इसके अंदर मैंने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक बता दी है. अब आपको मालूम है कि मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन्स आर गोइंग टू आस्क इन 2 mark, 3 mark ऑल्सो एंड समटाइम्स इन द 4 mark क्वेश्चन ऑल्सो. The marks are divided on the basis of the steps. If the 3 mark question is there, then it should be for the 3 steps. आपको 3 स्टेप में वो करके दिखाना होता है. सो दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड वेन एवर द कन्वर्जन इज डूइंग. मैनी कन्वर्जन्स आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक. यू कैन यूटिलाइज एनी ऑफ द वे, बट हैफेजार्डली मार तोड़ के आपको वो आंसर नहीं लाना होता है. बट इन द डिफरेंट चैप्टर्स, अमाइन के चैप्टर में जो दिया है मोस्टली सारे इंटर रिलेटेड है. सो whenever you can use any of the conversion method given from the textbook, but it is a relative method. It is a relative method. Just keep in your mind. And before going to start the conversion, you have to think the most common जो आपके पास में है. आपने कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं वो याद रखो. मैंने ये थोड़ी बहुत तो शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको. उसके अलावा हमने मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स रूल्स के बारे में आपको पता है. मार्कोनिकोव्स एंड एंटी मार्कोनिकोव्स, जो भी आपको रिएक्शंस मिला है स्टूडेंट, वो रिएक्शन के साथ में आपको सबसे पहले वो ही देख लेना है कि क्या इफ़ेक्ट कर सकता है, कौन से रास्ते से आप उसके डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो. उसके अलावा आपने फिटिंग, वुड्स फिटिंग एंड वुड्स रिएक्शन पढ़ा. सो वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, सो वो भी आपको बहुत हेल्पफुल होता है कि आप वहाँ से कौन से रास्ते पे जा सकते हो. और सबसे मेन जो हमारा रिएजेंट था वो था ग्रीनगार्ड रिएजेंट. तो ग्रीनगार्ड रिएजेंट से तो आप बहुत सारे कन्वर्जन्स में उसको इजीली यूज़ कर सकते हो. ग्रीनगार्ड रिएजेंट. और एक और हमने पढ़ा है डाइएजो सॉल्ट.
डाइएजो सॉल्ट। तो ये सारे रास्ते मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रास्ते का आप उपयोग करके काफ़ी इजीली आप प्रोडक्ट तक पहुँच सकते हो। एक बात साथ में ये भी याद रखनी है कि कार्बन में अगर मोर कार्बन की प्रोडक्ट पूछी है कि लेस कार्बन की प्रोडक्ट पूछी है, सो अगर मोर कार्बन की प्रोडक्ट है तो बट नेचुरल यू डायरेक्टली गो विद द फिटिंग रिएक्शन इफ द प्रोडक्ट इज for the more and even carbon, here you will understand that odd number of carbon की product नहीं मिल सकती है। So fitting reaction is useful to get the product of more number of carbon। आपको ब्यूटेन पूछा है तो ब्यूटेन से फिर आप आगे जा सकते हो। उसी के अलावा अगर आपके पास में मीथेन है तो मीथेन से प्रोपेन में आप नहीं जा सकते हो स्टूडेंट। सो दैट इज यू हैव टू कीप इन योर माइंड। एंड ग्रीनगार्ड रिएजेंट हेल्प यू टू get the alkyl nucleophile, attack of the alkyl nucleophile. It is very useful reagent, GreenGuard reagent. And for this you have to think about which one is the best living group। तो ये भी आपको ट्रिक में याद रखना है which is the best living group। तो आप उसको जैसे Cl है तो Cl को हटा के आप OH डाल सकते हो। सो सबसे पहला बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है और उसको लाने के लिए आपको कौन से रास्ते से अटैच कर सकते हो उसके ऊपर वो देखना है। मैनी पॉसिबल फंक्शनल ग्रुप कैन बी ऑल्सो हेलो अल्केन कंपाउंड से पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद में अगर OH लाना है ऐसा है तो आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी यूज़ कर सकते हो स्टूडेंट। सो द अदर देन दिस ऑल रूल्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, that method is also you can use by using the best oxidizing agent like KMnO4, K2Cr2O7, ये सब के यूज़ करके आप उसको गुड ऑक्सीडेशन कर सकते हो। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए भी आप उसका प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, टीन है, ऐसे सब HCl की प्रेजेंस में उसका यूज़ कर सकते हो। और हाइड्राइड और मिथाइल जो है स्टूडेंट, हाइड्राइड एंड मिथाइल वो दोनों ग्रुप को easily convert into कार्बोकैटायन। इट कैन बी इजीली कन्वर्ट इनटू कार्बोकैटायन। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर आप SN1 रिएक्शंस का यूज़ कर सकते हो एंड देन दिस रिएक्टेंट को डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोकैटायन मिला उसके बाद में आप कर सकते हो डीकार्बोक्सिलेशन। सो ये सारी ट्रिक मैंने आपको बताई। ये रास्ते से आपके लिए मोस्टली बट प्रैक्टिस मस्ट स्टूडेंट। कन्वर्जन ऐसी बात नहीं है कि गिन के 50 कन्वर्जन्स जो है उसी में से ही पूछते हैं। कन्वर्जन्स कहीं से भी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज एनी ऑफ द ट्रिक फ्रॉम द गिवन चैप्टर्स। सो उसी तरह से क्वेश्चन भी कहीं से भी पूछ सकते हैं। सो डीकार्बोक्सिलेशन। पर फिर भी मैं आपको एक छोटी सी हिंट बता देती हूँ, जो हिंट के थ्रू आप इजीली कन्वर्जन के लिए कौन सा रास्ता आपको यूटिलाइज करना है वो ले सकते हो। सो आपको पता है आपके पास में हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं स्टूडेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल जस्ट थिंक अबाउट द हाइड्रोकार्बन। कौन कौन से हाइड्रोकार्बन अवेलेबल है स्टूडेंट? तो ANE, ENE एंड YNE, ठीक है ना। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक द alkane, then alkene and then alkyne।
ये 3 हाइड्रोकार्बन है जो हमारा बेसिक है। अब वो बेसिक से आपको आगे आगे जाना है तो क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास में अगर अल्केन है, सो अल्केन का अगर मैं हेलोजिनेशन करती हूँ, अल्केन से हेलोजिनेशन, सो अल्केन का हेलोजिनेशन करके मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट? वेरी गुड, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अब अगर मेरे पास में अल्कीन है तो मुझे क्या करना चाहिए? अल्कीन है तो मुझे यहाँ से अल्काइल हैलाइड में टर्न करने के लिए मुझे लेना है कोई भी एक्स ग्रुप प्लस एसिड। मतलब अल्कीन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास में हेलोजन प्लस एसिड होना चाहिए, और सेम वे अल्काइन को अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसके लिए यूज़ कर सकती हूँ सेम रिएजेंट एज हेलोजन प्लस एसिड। तो ये 3 रास्ते हैं आपको अल्काइल हैलाइड तक हाइड्रोकार्बन में से लेके जाते हैं। अब अल्कीन में से अगर मुझे एरोमेटिक में जाना है स्टूडेंट, यहाँ एलिफेटिक में नहीं जाना है, अगर मुझे एरोमेटिक में जाना है तो अल्कीन में से एरोमेटिक में जाने के लिए सिंपल से मैं अल्काइन का पॉलीमराइजेशन करती हूँ। पॉलीमराइजेशन, सो पॉलीमराइजेशन करने से मुझे मिलेगा बेंजीन। तो आप एरोमेटिक में पहुंच गए। उसके बाद में फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग, ग्रीनगार्ड रिएजेंट, मार्कोनिकोज, SN1 SN2 का यूज़ करके आप प्रोडक्ट तक पहुंच सकते हो। अब यहाँ अल्काइल हैलाइड तक आ जाने के बाद में आपको अगर अल्कोहल एज ए प्रोडक्ट चाहिए, इफ़ द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड अल्कोहल, तो अभी मैंने आपको समझाया जब अल्कोहल प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एक्वायस KOH का यूज़ करना है। सो वेन एवर यू आर यूजिंग द एक्वायस KOH, द प्रोडक्ट इज अल्कोहल। अब उसके बाद में अगर मुझे अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब मुझे यहाँ ऐसा पूछा है कि कोई भी प्रोपेन दिया है और प्रोपेन में से मुझे प्रोपेनोइक एसिड में जाना है, तो आप क्या करोगे? प्रोपेन का आप हेलोजिनेशन करके प्रोपाइल हैलाइड बनाओगे, प्रोपाइल हैलाइड में से आप अल्कोहल बनाओगे, और उसके बाद में अल्कोहल में से ऑक्सीडेशन करोगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो आप प्रोपेनोइक एसिड मतलब के कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंच सकते हो। तो ये आपको मैंने एक रास्ता बताया कि कौन से रास्ते से आप पहुंच सकते हो। सो यहाँ पर रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अब जब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है आपके पास में, और फिर से आपको कुछ आगे ऐसा पूछा गया है कि जिसमें आपको ईथर चाहिए या एस्टर चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो क्या करोगे? अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर मैं अल्कोहल से रिएक्शन करवाती हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल, then the product is ester. Product is ester. सेम वे अगर यहाँ पर एमाइड चाहिए मुझे, तो उसका रिएक्शन मैं कराऊंगी NH2 के साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस NH2, then the product is एमाइड। एंड आपके पास में बहुत ही अच्छा
रिएजेंट है जो हमने आगे भी पढ़ा था, थायोनिल क्लोराइड है, PCl3 है, PCl5 है, ये सारे बहुत ही अच्छा। उसमें थायोनिल क्लोराइड के लिए तो मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे वीडियो में कि ये बहुत ही अच्छा एजेंट है जिससे हम असाइल हैलाइड बना सकते हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड में से असाइल हैलाइड हमें बनाना है तो हम PCl3, PCl5 और थायोनिल क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से जाते हैं अल्कोहल के ऊपर। अगर अल्कोहल से मुझे एल्डिहाइड बनाना है, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो एल्डिहाइड बनाने के लिए मेरे पास में होना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल। देन एंड देन ओनली इफ द प्राइमरी अल्कोहल इज गिवन और इफ द प्रोडक्ट इज पॉसिबल aldehyde. So primary alcohol gives you the aldehyde, but if the secondary alcohol, then the product is ketone. Secondary alcohol, by doing the oxidation of alcohol, you get the product as a ketone. दोनों के अंदर हमें करना तो ऑक्सीडेशन ही रहेगा। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो भी ऑक्सीडेशन करेंगे और सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो भी ऑक्सीडेशन करेंगे, बट प्रोडक्ट इज डिफरेंट फॉर बोथ द अल्कोहल। अब अगर कहीं पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नाइट्रोजन को हमें प्रेजेंट करना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट हम? सो अल्काइल हैलाइड हमारे पास में था, उसमें अगर हमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो हमें क्या करना है? KCN का यूज़ करना है, जो अभी आगे ही मैंने बताया। तो वहाँ से हमें नाइट्रोजन प्रेजेंट अल्काइल हैलाइड, फिर उसमें वो अल्काइल हैलाइड में अल्काइल हैलाइड में से अगर हम उसका रिएक्शन KCN से करते हैं फिर रिडक्शन करते हैं, देन द प्रोडक्ट इज अमाइन, क्योंकि हमें नाइट्रोजन को लाना है तो प्रोडक्ट इज अमाइन। और फिर वो अमाइन से अगर मुझे अल्कोहल में जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ आने के बाद अगर पूछा है मुझे अल्कोहल में जाना है, तो मैं अल्कोहल में जाने के लिए मैं बहुत ही अच्छा, हमारे पास में डायज़ो सॉल्ट मैंने जो आपको बताया था, तो उसका रिएक्शन कर सकती हूँ। तो ये अमाइन जो है वो अमाइन से अल्कोहल तक पहुंचने का ये लंबा सा जो रास्ता है वो रास्ता होगा हमारा। बहुत अच्छा रिएजेंट है NaNO2 प्लस HCl। सो अमाइन से डायरेक्ट आपको अल्कोहल तक पहुंचाता है और फिर उसके बाद आप कोई भी रास्ता यूज़ कर सकते हो और फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच सकते हो। सो स्टूडेंट, ये मैंने आपको थोड़ा कन्वर्जन इजी करने के लिए ट्रिक बताई है। होप सो स्टूडेंट दिस chapter you have enjoyed a lot and try to utilize this all the trick for the more and more practice give you the success. All the best student, and thank you for subscribing my channel also. Thank you so much student.